Yes, good morning, class. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. So what we were doing yesterday, we have started 2D transformation. As the document is being shared to you all, सबको document दिख रहा है ना? हाँ, तो ये document हमने कल start किया था 2D transformation का. क्या होता है 2D transformation? What is 2D transformation? हाँ जी, ऋतिक मक्कर, क्या होता है 2D transformation? ऋतिक, what is 2D transformation? अरे कुछ बोलोगे? Ritik, I'm asking from you, Ritik Makar. Yes, so 2D transformation we have started. What is that? In that, this is actually a process of repositioning, or we are changing the shape and size of our geometric objects. ठीक है? तो इसके अंदर we have covered translation, we have seen rotation also. So in translation and rotation, किसी को कोई doubt है? How do we translate an object? What is the transformation matrix for translation? Is it clear to all? क्या होता है translation matrix? ये हमने कल देखा था. ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होता है? दिस इज द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर ग्राफिक्स 2D ऑब्जेक्ट्स का. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है, सो फॉर एवरी न्यू वर्टेक्स, दैट इज एक्स न्यू और वाई न्यू के लिए, old vertex में we are going to add tx and ty, where tx is the translation vector along x axis and ty is the translation vector along y axis. तो इतना क्लियर है सबको ट्रांसलेशन का? And we can simply write them in homogeneous coordinates also. homogeneous coordinate में क्या होगा कि हमारा जो ये वाला फॉर्म था ना 2x2 का, उसको हमने लिख दिया है. अच्छा, homogeneous में ध्यान रखो हमेशा कि आपका t पहले आता है और x बाद में आता है. That means transformation matrix will be multiplied by the coordinates. It's not like कि coordinate को हम t से multiply करेंगे. No, because it is not commutative in nature. तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, when you are representing your transformation matrix in homogeneous coordinate, ये homogeneous coordinate system है ये वाला. तो यहाँ पर आपने एक identity matrix लिखा और last column में आपका tx ty आ जाता है. This is your homogeneous coordinate representation multiply by x old y old, that is the previous. अगर इसको इकट्ठा पूरा एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो यहाँ पर x1 y1, यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3 और लास्ट रो इज इक्वल्स टू 1. तो ये पूरा आपका किसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा? दिस होल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंप्लीट ऑब्जेक्ट. अगर स्क्वायर को आपने ट्रांसलेट करना है या आपने रेक्टेंगल को ट्रांसलेट करना है तो अलग अलग कोऑर्डिनेट का ना करके इकट्ठे आप कर. ठीक है, गिव मी अ मोमेंट. Okay, so इतना तो we have covered. We have seen translation and rotation. So translation and rotation के examples आपको करने हैं. What I will do, I will send you the questions. The questions I have seen which is being asked in exams. ठीक है, and you can also try out from various. आप Google करेंगे तो numericals आपको मिल जाएंगे. Plus
मैं आपको जो देती हूँ बट आप लोग करते नहीं हो, प्रॉब्लम इज दैट। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल दिए थे, ब्रीशन हेम्स के भी और मिड पॉइंट कोन सदरलैंड के भी। यू हैव नॉट सबमिटेड मी येट। और आपका असाइनमेंट भी सबमिट नहीं है। प्रेम, व्हाट हैपेंड टू यू? आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं है। और किसने नहीं किया असाइनमेंट? बाकी तो जो लॉगिन है उन्होंने किया हुआ है। प्रेम, आपका असाइनमेंट नहीं है। यू डोंट वांट टू सबमिट द असाइनमेंट। अब तो वैसे होगा भी नहीं क्योंकि मार्क्स जा चुके हैं आपके। यस, एम आई ऑडिबल टू ऑल? एम आई ऑडिबल? यस क्लास। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Why are you not responding? What is the problem? चलो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलिंग से। yesterday I have started about scaling also. What is scaling? Yes, if anyone wants to add on, what is scaling? क्या होता है scaling? देखो स्केलिंग क्या है? स्केल करना। यू वांट टू स्केल एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यू वांट टू इंक्रीज द साइज or decrease the size. That is, you are changing the shape in terms of sizing. Size, आप resize कर रहे हो किसी भी object को. Either you are compressing an object or you are enlarging an object. So this particular topic comes under scaling. So scaling is a process of changing the size of a geometrical object. Either you are enlarging the object or you are compressing it. Now आप उसको कैसे scale कर रहे हो? जैसे translation के अंदर आपने translation vectors पढ़े थे, tx and ty. Similarly, there are scaling vector कि you are scaling an object by 2 along x and y axis. इसका मतलब क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ट्वाइस एनलार्ज कर रहे हो, है ना? इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर आपके जो एस एक्स और एस वाई है, दैट इज 2। सेपरेटली भी आपको गिवन हो सकते हैं कि आप एक्स एक्सिस में ट्वाइस कर रहे हो और वाई एक्सिस में 3 टाइम्स कर रहे हो। तो यहाँ पर स्केलिंग के अंदर हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है कि जो आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है, एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड, लेट सपोज आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स ओल्ड एंड वाई ओल्ड, और आपके स्केलिंग फैक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? एस एक्स, and the scaling factor along y-axis is sy. So what will be the new coordinate? How will you represent it? So x new is equals to x old multiply sx and y new is equals to y old multiply sy. ये हमने कल किया था. And when I want to represent the whole thing in the form of geometric representation, तो ये कैसे आ जाएगा आपका? x new y new is equals to, ये आपका स्केलिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, sx 0 0 sy multiplied by this. Now the entire thing can be written in homogeneous coordinates again. Homogeneous coordinate में आप इसको कैसे लिखोगे? like this, कि आपने यहाँ पर sx, ये वाला तो आपने पढ़ा था, लास्ट में आप यहाँ पे 0 0 0 0 1, ये आपको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये ही आपको याद रखनी है। इसी तरीके से आप सारे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर है सबको कि ये कैसे आया है? Yes, ma'am. Everyone? Yes, Neha? ma'am. Neha, is it clear to you? नेहा, आपको आपको ये याद रखनी है, ठीक है? these are the things that you need to remember. Now just do a numerical. एक अपनी नोटबुक्स निकाल लो और इसको सॉल्व करो। अभी एक क्वेश्चन है कि this is a question. This question has been asked many times in exams. Given a square object with coordinate point this, ये आपका स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये 0 3 3 3 3 0 और 0 0. Now applying the scaling parameter sx, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ कि जो आपको sx गिवन है, सॉल्व इट है, कि जो आपको sx गिवन है दैट इज 2 और sy कितना गिवन है? sy इज गिवन एज 3, ठीक है? और जो आपका स्क्वायर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज a 0,3, तो इसको आप लिखते कैसे हो? अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म लाइक 0
3 3 3 3 0 0 0 अंडरलाइन होके अपने यहाँ पर है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ अभी, ठीक है। और लास्ट में है 0 0, ये मेरा मैट्रिक्स है स्क्वायर का, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा 1, ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स को, मतलब कि अगर हमें इकट्ठे ही सारा करना है, अलग अलग कोऑर्डिनेट ये जो सॉल्व होके है ना, वो मैं यहाँ पर जो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन है दैट इज गिवन फॉर एवरी सिंगल कोऑर्डिनेट के लिए। ए के लिए अलग निकाल रहे हैं, बी के लिए अलग निकाल रहे हैं, बट यहाँ पर अगर हम इसको कंप्लीट ऐसे लिख देंगे ना, लेट मी इंसर्ट, सिंबल कहाँ से लाते हैं, चलो छोड़ो, इतना टाइम इसमें वेस्ट करेंगे। कि ये पूरा, ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 3 3 3 3 0 0 0 और लास्ट रो 1 है। नाउ अब मुझे करना क्या है, पहले अगर मेरे को अब स्केलिंग का मैट्रिक्स लिखना है, तो स्केलिंग का मैट्रिक्स क्या होगा, 2 0 0 देन हाँ 2 0 0, फिर यहाँ पर आएगा 0 और SY कितना है यहाँ पे 3 एंड इट इज 0 एंड द लास्ट रो इज 0 0 1, ठीक है। ये तो मेरा स्केलिंग मैट्रिक्स आ गया। स्केलिंग मैट्रिक्स सबको क्लियर है कि ये कैसे आया है, दिस इज माय स्केलिंग मैट्रिक्स। स्केलिंग मैट्रिक्स कैसे बताया था, 2 क्या है मेरा SX 0 0 0 SY 0 0 0 1, यस, ये स्केलिंग मैट्रिक्स क्लियर है। अब आपको इस स्केलिंग मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस स्केलिंग मैट्रिक्स विद दिस, विद द मैट्रिक्स ऑफ योर स्क्वायर, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। यस क्लास, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Take your notebook. This is the scaling matrix and this is your matrix of your square. स्क्वायर जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको ऐसे लिख दिया। देखो आपका न्यूमेरिक ऊपर देखो, इक्वेशन में क्या था, ये आपकी इक्वेशन थी, ये वाली, यहाँ देख रहे हो ध्यान से, स्क्वायर स्केलिंग मैट्रिक्स दिख रहा है। Yes, ma'am. इस स्केलिंग मैट्रिक्स में x ओल्ड y ओल्ड 1, दिस इज फॉर ओनली वन कोऑर्डिनेट दैट इज a। मैंने यहाँ पर x ओल्ड y ओल्ड फॉर a, फॉर b, फॉर c और फॉर d, चारों के लिए लिख दिया है। यहाँ पर देखो, ये चारों के लिए लिख दिया है, ये देख रहे हो a b c d। अब इनको इकट्ठे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, अलग अलग करने से टाइम ज्यादा वो होता है। और जब भी न्यूमेरिकल आएगा, आपको पहले जो इक्वेशन है वो लिखनी है, इक्वेशन पूरा आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं ना, तो इसमें भी आपको फॉर्मूला के मार्क्स मिलेंगे। तो आप पहले स्केलिंग मैट्रिक्स लिखोगे कि क्या होता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन लिखोगे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइक दिस यू हैव टू रिप्रेजेंट एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल, सबकी वैल्यू पुट कर दी। ये आपके मैट्रिक्स है, ये आपका स्केलिंग मैट्रिक्स है और ये आपका स्क्वायर ऑब्जेक्ट का मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, a डैश b डैश c डैश और d डैश क्या आ रहा है बताओ। मल्टीप्लाई आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। साहिल, रोल नंबर 44, डू यू नो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? हाँ जी साहिल। अगर आप लोग चुप रहेंगे और इफ यू नॉट एबल टू आंसर, देन हाउ आई एबल टू गेस कि यू आर गेटिंग इट नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा किसी को कुछ? सरिता,
यस मैम। स्केलिंग मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? यस मैम। हाँ, तो क्या आंसर आ रहा है इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना। टेल मी फास्ट, व्हाट इज द आंसर? इन्होंने जो सॉल्व किया हुआ है दैट इज फॉर सिंगल सिंगल कोऑर्डिनेट्स के लिए सॉल्व किया हुआ है. यू विल नॉट डू लाइक दिस. ओके, you will not do like this, you will do it entirely for the complete square. जैसे मैंने ऊपर बताया है, आप पहले इक्वेशन लिखोगे, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आप लिख लो आंसर. आपको मैच करना है कि a आएगा 0,9. 0,9 आ रहा है किसी का? रेज योर हैंड. b is 6,9. C is 6,0 and D is 0,0. This will be the scaling. Originally आपका square ये था. After doing the scaling, your new square will be like this. अगर आपको solution में problem आ रही है, please do tell me. मैं उसको proper solve करके डाल दूंगी classroom पे. बताओ, किसी को कुछ problem है solution में? तो तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो कुछ भी. हाउ आई एबल टू गेस कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? सौरभ, रोल नंबर 51. हाँ जी. हु आर यू डोंट एबल टू आंसर तो क्लास से बाहर जाओ. चलो, आई एम थ्रोइंग यू आउट. बहुत अच्छी बात है. बाकी साहिल, ऋतिक, स्केलिंग क्लियर है? शैल आई प्रोसीड अहेड? Yes class, shall I proceed ahead? मैम एक बार ये टॉपिक फिर से मैम रिवीजन करा दीजिए मैम. Is this विकास? यस मैम. आप विकास क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? मुझे समझ नहीं आता. टुडे आल्सो यू हैव जॉइंड सो लेट. मैम मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम मैम बताने के कॉल किया था बट मैम आपने रिसीव नहीं किया. I was busy that time. मुझे ये नहीं समझ में आता, लास्ट सेमेस्टर में भी आपको इतनी प्रॉब्लम थी, इस सेमेस्टर में भी आपको नो इतनी? मैम लास्ट सेमेस्टर में मेरी फुल अटेंडेंस थी मैम और मेरे नहीं, जब मैंने सब्जेक्ट भी आपको सही था पढ़ाया मैम. था तब की बात कर रही हूँ मैं. मैम थोड़ा सा मैम अभी मैम अपने मदर का मैम थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए मैम उसमें प्रॉब्लम है मैम. ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन. म्यूट योरसेल्फ, देयर इज सो मच नॉइज एट योर बैकग्राउंड. ये देखो, दिस इज अ पेपर ऑफ लास्ट ईयर. यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताऊंगी. विकास, अभी मैं थोड़ा पढ़ा लूं तो मैं आपको एक इसकी दोबारा से एक रिवीजन क्लास चलाऊंगी. हम लोग 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं. आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यू हैव नॉट अटेंडेड द लास्ट 2 क्लासेस. नहीं करिए ना लास्ट 2 क्लास अटेंड. यस मैम नहीं किया मैम. हाँ, तो फिर हाउ यू एबल टू गेट? मैं रिवीजन क्लास इसकी हेल्ड करूंगी सैटरडे को. ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आएगा सैटरडे को क्लास लेना. ओके मैम. जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है, क्वेश्चन पेपर. देखो ये, फाइंड द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्राइंगल. दिस इज द ट्राइंगल अबाउट एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मिरर रिफ्लेक्शन निकालो और ऑल्सो वर्क आउट द ट्रांसफॉर्मेशन टू रोटेट द अबव ट्राइंगल एट पॉइंट P क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री. अब ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है. सबको क्लियर हो रहा है? और ये जो सेकंड पार्ट है, विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिट मैट्रिक्स आपको डेवलप करना है. तो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी. दिस इज अ यूनिट 2 जो हम कर रहे हैं उसका टॉपिक है.
और ऊपर वाला पार्ट रिफ्लेक्शन है और रोटेशन है। रिफ्लेक्शन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट वी हैव स्टडीड रोटेशन। तो यहाँ पर रोटेशन में ये बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन तो मैं अभी आपको बताऊंगी, तब वी विल बी एबल टू डू दिस। रोटेशन में हमने दे आर सेइंग कि रोटेट द अबव ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के पॉइंट्स गिवन है, अबाउट द पॉइंट P clockwise by 90 degree. Now this is a new topic which we called as rotation about a point. So we have studied only rotation. Now the next thing that we have to start is rotation about the point. Okay, now put a new heading and call it as rotation about a point. आपको ये डॉक्यूमेंट सबको शेयर हो गया है? Yes class. This document is shared to you. जो खोला है मैंने नया डॉक्यूमेंट, नया एक लिंक खोला है, ये सबको दिख रहा है? यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, हमने डिराइव किया था मैट्रिक्स। व्हाट वाज द मैट्रिक्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो उसका मैट्रिक्स क्या था? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमने किया था। cos theta that is cos theta minus sin theta and sin theta cos theta. That was the matrix for rotation, right? Rotation in anti-clockwise direction, ठीक है। बट अगर हमें करना है clockwise, तो what is the new matrix? क्लॉकवाइज के लिए नया मैट्रिक्स क्या था? गेस क्लास। ये तो आपका था, दैट इज फॉर रोटेशन अबाउट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज, तो उसके लिए आपका नया मैट्रिक्स है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये सबको याद है, कल हमने किया था। नाउ अब क्वेश्चन में ये रोटेशन की बात तो कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि रोटेशन अबाउट अ पॉइंट करना है। जैसे अगर ये आपका ट्राइंगल है, क्वेश्चन में देखो, दिस इज अ न्यूमेरिकल, रोटेट अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, बाय एन एंगल 45 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट दिस। नाउ अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसको 3 स्टेप में करना होता है। व्हाट आर द 3 स्टेप्स दैट यू हैव टू डू? फर्स्ट, जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यस स्टेप्स लिख लो, जस्ट राइट डाउन द स्टेप्स एवरीवन। स्टेप 1 क्या है? रोटेशन अबाउट अ पॉइंट का। मैं इसके प्रॉपर नोट्स आपको शेयर कर दूंगी कि इसके प्रॉपर नोट्स क्या है, अभी आप समझ लो न्यूमेरिकल के थ्रू कि फर्स्ट स्टेप इज जिस भी पॉइंट के थ्रू आपको रोटेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इट इज रिटन हेयर ऑल्सो कि फर्स्ट ब्रिंग द पॉइंट -1, -1 टू द ओरिजिन, ठीक है। यस, पहला स्टेप क्लियर हुआ? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यू हैव टू ब्रिंग द पॉइंट -1, जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना है ना आपको, उस पॉइंट को ओरिजिन पे ले आओ। ओरिजिन पे लाने के लिए क्या करना होगा? आपको उस पॉइंट की वैल्यूज को 0,0 करना है। तो -1 में आपका tx और ty क्या होगा? देखो, ओरिजिन पे लाने का मतलब क्या है? आपको उसको रिपोजिशन करना है। रिपोजिशनिंग मीन्स यू हैव टू ट्रांसलेट इट। ट्रांसलेशन के लिए यू नीड टू बी नो अबाउट tx and ty, that is a translation vectors। तो यहाँ पर tx और ty क्या हो जाएंगे? बताओ, tx और ty क्या होंगे इस पॉइंट के लिए? Yes class, what is tx and ty for this point? -1 में क्या करोगे कि 0 आ जाए? +1 करोगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी -1 में क्या करोगे कि 0 आ जाए? +1 करोगे। तो tx हो गया 1 और ty हो गया 1। ये क्लियर है? हाउ इज tx is 1 and ty is 1? Whenever you want to rotate any object about a point, first of all, the first step that you have to perform is bring the point to the origin. तो origin पे लाने के लिए आप tx और ty जो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। दैट विल बी, अगर आपका पॉइंट यहाँ पर 3,2 होता,
अगर 0.3, 2 होता तो tx कितना होता अमन? व्हाट विल बी tx देन? यस मैम। अगर ये जो पॉइंट है 3, 2 होता तो tx कितना होता और ty कितना होता? मैम जीरो करने के लिए हाँ मैम माइनस कर देते, उसको माइनस में कर देते, अगर +3 होता तो उतना ही माइनस कर देते। यस, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर 3, 2 होता तो tx विल बी -3 एंड ty विल बी -2। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको ट्रांसलेशन करना है उसको ओरिजिन पे लाने का मतलब है यू हैव टू मूव द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन, सो यू नीड टू हैव माइनस द पर्टिकुलर वैल्यू। तो tx यहाँ पर अगर ये -1 है तो tx विल बी 1, क्योंकि -1 में 1 ऐड करोगे तभी 0 आएगा। सिमिलरली ये -1 y का कोऑर्डिनेट में भी अगर ty को 1 करोगे ऐड तभी 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया कहाँ पर? ओरिजिन पे, तब आपको रोटेशन परफॉर्म करना है। रोटेशन कितना करना है आपको? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे आप रोटेशन करोगे। उसके बाद क्या करना है? जो आपने उसको ट्रांसलेट किया था यू हैव टू रीट्रांसलेट इट बैक to its original position. These are the 3 steps that you need to perform. First of all, आपको ये steps पता होने चाहिए, तब आप इसका solution करोगे। पहला step क्या है? First step क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करना है अबाउट अ पॉइंट, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप उसको ओरिजिन पे लेके आओगे। then you will perform the rotation at a given angle and then you will send the point back. ठीक है, बैक पहुंचाने के लिए फिर से क्या करोगे? tx में जो आपने पहले माइनस किया था अब वो चीज ऐड करोगे। पहले आपने 1 को माइनस किया था तो अब आप 1 ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे मतलब कि पहले 1 किया था तो उसकी देखो आपने नेगेटिव लिया था, माइनस किया था, बट ओरिजिनली -1 था तो माइनस इंटू -1 गिव्स यू 1। बट यहाँ पर आप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? पहले आपके tx था 1, अब tx क्या हो जाएगा? -1 और ty क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि अब तो 0,0 हो चुका है ना। अब उसको वापस भेजने के लिए आपने फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो आपके न्यू tx विल बी -1 एंड न्यू ty विल बी -1। तो ये 3 स्टेप का कंपोजिट मैट्रिक्स आपको निकालना है। कंपोजिट मैट्रिक्स मतलब पहला ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा फिर से ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आपने क्या किया? tx, यहाँ देखो जो रेड लाइट ब्लिंक हो रही है वहां पे देखो, tx is the translation matrix which will be multiplied by the rotation matrix at 45 degree. Again it will be multiplied by tx which is a translation matrix. ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके you will produce a composite matrix. This is your composite matrix. फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? अपने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट से। ये पूरा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इस पे शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोटेशन अबाउट एन एंगल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो उसमें आप सारे स्टेप्स समझाते हो और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको पहले स्टेप समझ में आ गए हैं सबको? Yes class, do you all clear with the steps? Now just look at here. देखो ये वाला कोऑर्डिनेट समझ, ये वाला ट्रांसलेशन मैट्रिक्स समझ में आया? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ये वाला कैसे आया है? देखो ये यहाँ पर हमने पढ़ा था 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1, ये tx ty था आपका। हाँ जी, ये tx ty था। तो ओरिजिनली आपने tx पहले कितना निकाला था? 1 और ty निकाला था 1, तो यहाँ पे 1 1 पुट कर दोगे। और ये आपका रोटेशनल मैट्रिक्स था, रोटेशन का मैट्रिक्स। रोटेशन का मैट्रिक्स कितना होता है? cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एंड 0 0 0 0 1, ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है आपने। अगेन यू विल बी मल्टीप्लाई इट विद द रीट्रांसलेशन, आपको उसको दोबारा से रीट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए आपका tx और ty कितना था? -1। ये तीनों मैट्रिक्स कैसे आए हैं ये सबको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? यस दीपक मलिक? यस मैम, हो रहा है। हो रहा है बेटा, नोट कर रहे हो? इफ यू विल नोट इट डाउन तो आपको क्लियर होगा। इसको लिखने से पहले इनके ओरिजिनल वैल्यू को नोट करो। ये वाला
अपना माइक ऑफ करो, म्यूट योरसेल्फ। देखो मैंने आपको बताया था, ये था आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होता है? ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमने डिराइव किया था। Yes, sir. ये है ना, दिस इज द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स दैट वी हैव डिराइव। 0 0 सॉरी ये है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है ना ये 1, तो यहाँ डायगोनल जिसका 1 होता है 1 0 tx 0 1 ty एंड 0 0 1। tx और ty की वैल्यू जब हमें उसे ओरिजिनल पे लेके आना है, हमने डिराइव करी, इट इज 1 1, तो यहाँ पे 1 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका। उसके बाद आपको रोटेशन का मैट्रिक्स याद होना चाहिए, विच इज व्हाट इज द रोटेशन मैट्रिक्स? cos 45 माइनस sin 45 0, फिर sin 45 माइनस cos 45 0, और लास्ट रो इज 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपका जो तीसरा, दैट इज यू हैव टू रीट्रांसलेट इट बैक, तो उसके लिए यहाँ पर tx और ty कितना आ जाएगा? -1 -1। तो इस तरीके से आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, अब इसका कंपोजिट मैट्रिक्स डिराइव करो। कंपोजिट मैट्रिक्स कितना आ जाएगा? सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए cos 45 और sin 45 होता है 1/√2। याद है किसी को? 1/√2 होता है। यस मैम। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन जिसको नहीं आता है, प्लीज रेज योर हैंड, हु डोंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। मैं एक बार बता दूंगा, भूल गया, बहुत टाइम पहले करा था। अरे देखो, इस पे एक स्लीपिंग एरो बनाओ, यहाँ पर एक स्लीपिंग एरो बनाओ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंडिंग एरो बनाओ, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। दैट इज 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, लिखो जल्दी से, 1 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 0, तो ये तो होगा आपका पहला एलिमेंट। ठीक है, मतलब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? एवरी रो विल बी मल्टीप्लाई विद एवरी कॉलम, मतलब कि 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा? ये तो 0 0 दे देगा, और ये 1 को 1/2 से करोगे तो 1/2 आएगा यहाँ पर। फिर उस तरह, ये तो पहला एलिमेंट हुआ। दूसरे एलिमेंट के लिए फिर से क्या करोगे? 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 0 को 1/2 से करो, प्लस 1 को 0 से करो, तो ये दोनों तो 0 0 होंगे, यहाँ पर आ जाएगा -1/2। फिर अब तीसरे एलिमेंट के लिए फिर से 1 को 0 से करो, 0 को 0 से करो, और 1 को 1 से करो, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 आना चाहिए यहाँ पे। 1 को 0 से किया, 0 को 0 से किया, 1, यहाँ पे -1 आ रहा है, पर यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बेसिक लिंक में भेज दूंगी कि कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो कैसे करोगे? जब हम ये थर्ड वाला में इसको भी कैसे करेंगे? पहले थर्ड वाला मतलब फर्स्ट मैम जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन, हाँ, और मैम थर्ड वाला देखो, पहले 2 को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आ गया, यस मैम, फिर उसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। यस मैम, ठीक है, इसलिए यहाँ -1 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे मल्टीप्लाई। देखो, तुम्हें पहले बेसिक मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि हर एक रो को हर एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 1 को 1/2 प्लस 0 को इससे, फिर प्लस
इसको इससे, ये तो पहले एलिमेंट की बात हुई। फिर दूसरे Yes, एलिमेंट ma'am. के लिए फिर से हम इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए फिर इस वाली रो को इससे करेंगे। अब सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट के लिए, सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट के लिए यू विल रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर दिस रो। Okay, ma'am. ठीक है, इस वाली रो के लिए, ये वाली रो के लिए आप फिर से वही सेम प्रोसेस करोगे हर एक कॉलम के एलिमेंट के साथ। फिर थर्ड रो के लिए हर एक कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे और बीच में प्लस करोगे। तो ये तो तरीका है Okay, ma'am. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका कंपोजिट मैट्रिक्स ये आना चाहिए। किसी का आया है ये? यस, किसी का आया है ये वाला? तो कोई कर भी रहा है? यस मैम। नहीं बस मैडम, एक सेकंड। नहीं मैम, अमन यू आर नॉट डूइंग? नहीं मैडम, ये नहीं आया, गलत आ गया। अच्छा, ये नहीं आया आपका। मैं ऐसा करती हूँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आई विल सेंड अ पिक्चर ऑन योर पर्सनल ग्रुप, जो एक ग्रुप बना हुआ है ना आप लोगों का स्टूडेंट वाला, उसमें भेजती हूँ। ठीक है, यू विल जस्ट चेक आउट कि कैसे मल्टीप्लाई करते हो, और मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूंगी मल्टीप्लिकेशन, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाला मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मेरा मैट्रिक्स था ना, ट्राइंगल का मैट्रिक्स, ए बी सी के कोऑर्डिनेट, ए था 0 0, बी था आपका 1,1 और सी था 5,2 और लास्ट रो 1 1 1। तो इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो न्यू कोऑर्डिनेट विल बी ए के आ जाएगा -1 दिस, बी का ये वाले और सी के ये वाले। ये वाला जो रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये वाले क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं एक मिनट, एक मैम एक बार वो स्लाइड करना, थोड़ा नीचे करना। नीचे कहाँ करूँ? ऊपर? हाँ यस इसको नोट कर लो, नोट इट डाउन सो दैट। मैम, बट आंसर तो ये आ ही नहीं रहा। आंसर ये नहीं आ रहा यस मैम। आपका? ये आंसर आ रहा है ये वाला कंपोजिट नो मैट्रिक्स? मैम, ये नहीं आ रहा। तो चलो नो मैं मैम। सॉल्व करती हूँ, मैं सॉल्व करती हूँ फिर भेजती हूँ आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट करो, इन दो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे आज। जस्ट नोट इट डाउन। रोटेट अ ट्राइंगल बाय एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नाउ इसमें क्या करोगे? यस, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में रोटेट अ ट्राइंगल बाय 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट मीन्स आपका ट्राइंगल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें सिंपल रोटेशन करना है, आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही करना है। प्लस यहाँ पर आपको गिवन नहीं है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में करना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। व्हेन इट इज नॉट गिवन तो आप बाय डिफॉल्ट इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलोगे, दैट मीन्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा वाला। ठीक है, when the direction is not given then you will take it by default anti-clockwise। anti-clockwise मतलब जो डेरिवेशन में मैंने सॉल्व कराया था ना कि p को आप p डैश लेके जाओगे, याद है? आपको डेरिवेशन याद है उसका डायग्राम? तो यहाँ पर सिंपल आपका जो मैट्रिक्स है, दिस इज योर मैट्रिक्स A एंड दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कंपोजिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो इससे। यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, पहले आपका t आएगा, पहले t आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका ट्राइंगल, उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। जस्ट नोट इट डाउन, क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, टाइम क्लास ओवर हो रहा है। इन दो क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं भेजूंगी आपको, बट आप लोग भी सॉल्व करो इसको।